A very good morning. I am Hemendra Patil, and today we will discuss about the basics of thermodynamics and some basic properties about the thermodynamics which are very important in thermodynamics to understand about the thermodynamics. So first we have to understand what is the thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physical science that deals with the relation between heat and other form of energies such as mechanical energy, electrical energy, chemical energy, and by extension of the relationship between all form of the energy. If we will break down the thermodynamics word, so it will be thermo plus dynamics, means heat plus motion. So heat is moving or heat is in the motion, or we can say thermodynamics is a science that describes how thermal energy is converted from one form to the other and how it's affect the matter. So thermodynamics is a very simple, it is a branch where we discuss about the relations between heat and other form of the energies. Now coming to some basic properties or basic things about thermodynamics. First we have to discuss about the energy. What is the energy? Energy kya hai? Energy is the ability to cause any change or capacity for doing any work. If you want to do some work or anything or any object want to do work, so it has some ability to cause any change in that object. So that is ability is known as the energy. Now coming to the next, system. System kya hai? System is a fixed mass or a fixed region in space where our study is focused. तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है फ्री स्पेस में. It depends upon our study. Let us take the example of piston cylinder arrangement. If we are taking the space for our study is inside the cylinder, you can see in the diagram the space is only the piston and the free space inside the body. So that may be our the system. Or if we want to consider whole body and valve and all the system containing in the piston cylinder arrangement, so that may also be our system. So it's totally depends upon what you want to study, and it must be in the region inside our system. So system is a fixed mass or fixed region which we consider in the space where our study or where we want to study. And what is the surrounding? Everything except the system forms the surrounding. The part of the surrounding which affects by the system is called the immediate surrounding. Suppose we consider some system for our study, so the surrounding will be the except system, nearby all the space will be considered as the surrounding, and the immediate part or immediate space nearby your system is called the immediate surrounding. And if you will see the boundaries, so there may be two types of boundaries, real or imaginary boundaries. Now again taking the example of piston cylinder arrangement, if I am taking my system as a complete piston cylinder arrangement with the body, so body may be the real boundary for my system, but somewhere if I don't considering the body in the piston cylinder arrangement for my study, and the only system for my study is inside space, so I have to make an imaginary surface. There in diagram you can see there is a real boundary and one is the imaginary boundary. So it depends on our system what is what we considering our system for study. So it may be a real or imaginary surface which separates the system from surroundings. That is known as the boundary. Now coming to the types of the system. सिस्टम के टाइप्स कितने हैं यहाँ पे? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं तीन टाइप के सिस्टम में. फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकंड है क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम है जहाँ पे मास ट्रांसफर भी हो सकता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है. मतलब सिस्टम आप एक ओपन स्पेस ले रहे हैं जहाँ से आप कोई मास को एग्जिट कर सकते हैं और एनर्जी भी वहाँ से ट्रांसफर हो सकती है. सेकंड सिस्टम जो है वो है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम है जहाँ पे आप मास का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो एक पैक सिस्टम है, बट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं रोक पा रहा है. एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी बाउंड्रीज के थ्रू, है ना, आइसोलेटेड नहीं है वो. थर्ड यहाँ पे जो सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम. यू कैन सी इन द इमेज द थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे मास का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, साथ में एनर्जी का ट्रांसफर भी पॉसिबल
नहीं है क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है, तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है और साथ में मास का ट्रांसफ़र होना भी पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन सी इन द टेबल टाइप्स ऑफ सिस्टम लाइक ओपन सिस्टम में हमने देखा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो रहा है और मास का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम में से किस तरह का सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। सेकेंड वन जो है वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र तो हो रहा है बट वहाँ से मास का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे एक आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा, फर्स्ट वन है कप ऑफ टी, जो कि एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें से मास का एग्जिट हो सकता है। यदि कोई चाय पीना चाह रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो मास एग्जिट हो रहा है कप से। और दो सेकंड है एनर्जी का ट्रांसफ़र देखें हम लोग, तो एनर्जी भी इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो हॉटनेस है वो थोड़ी देर में कम हो जाएगी और जो टी है कप के इनसाइड में वो थोड़ी देर के बाद या टाइम के साथ में ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि मास के साथ में एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड एग्जांपल सेम कप ऑफ टी बट इट इज़ क्लोज्ड, तो क्लोज है तो यहाँ से मास का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, मास ट्रांसफ़र बंद है, बट एनर्जी का ट्रांसफ़र अगेन हो सकता है। टी कप से यहाँ पे जो है टेम्परेचर अभी भी डाउन हो सकता है, टाइम के साथ ये वापस से ठंडा हो जाएगा। थर्ड वन इमेज में आप देख सकते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है जहाँ पे थर्मस है। इसमें से ना तो मास का ट्रांसफ़र हो सकता है जब तक ये क्लोज है, ओपन करके तो मास का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल है बट क्लोज में मास ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और साथ में हीट का ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंसुलेटेड है, कंप्लीटली इंसुलेटेड है। सो ऐसे सिस्टम जहाँ पे मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है उनको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और जहाँ पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो वो है क्लोज सिस्टम। जहाँ पे दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं मास और एनर्जी, वो है ओपन सिस्टम। नाउ कमिंग टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दीज आर also very important in thermodynamics. Basically the properties are classified in two types. First one is intensive property, second one is extensive property. First we will discuss about the intensive properties. The properties which is independent of mass of system is called the intensive properties. Suppose you consider some system in which there is containing some mass, but the properties of that system which are not depending upon that mass which is contained inside that your system, so that properties are known as the intensive properties. यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे प्रेशर। यदि किसी सिस्टम के अंदर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है मास के। यदि मास इंक्रीज हो रहा है 1 kg से 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, बट इसके होने से क्या होगा, प्रेशर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर की बात करें, सपोज यू आर टेकिंग 1 kg या 1 liter of water at 100 degree Celsius, so the temperature is 100. Now you again added some another 1 kg, 1 liter of water inside that container with 100 degree Celsius. So what will happen, the total temperature of the system will again be the 100 degree Celsius. It does not depends on the mass. Mass is increased here from 1 liter, volume is increasing 1 liter to 2 liter, but it does not depends, temperature does not depend on the mass. Third one is the density. Density में काफ़ी confusion होता है लोगों को कि density यदि हम लोग देखें कैसे calculate करते हैं, mass by volume. So in formula there is a mass, so it depends on mass, but how it is coming in intensive property? No, it does not depends on mass. Let us take example of water. If we will check the density of water, it is approximate 1000 kg per meter cube. मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 kg के समथिंग मास कंटेंट है। वहीं यदि हम 2 मीटर क्यूब या 2 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम लेते हैं तो उसका डेंसिटी कितना होगा, तो 2 मीटर क्यूब हो, 3 मीटर क्यूब हो, 4 मीटर क्यूब हो, डेंसिटी अगेन सेम रहने वाला है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो मास उसमें सेम है। तो इस तरह से डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप 1 लीटर पानी लें, 2 लीटर लें, 10 लीटर लें, 20 लीटर लें, सारी जगह डेंसिटी आपको वाटर की सेम मिलने वाली है, दैट इज 1000 और वी कैन से 998 kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है मास पे। इसके अलावा जितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो भी इंटेंसिव की कैटेगरी में आती है।
For example, specific volume, specific internal energy, specific enthalpy. This all specific properties are intensive properties. Now coming to the extensive properties. अब जैसे हम लोगों ने देखा कि intensive properties जो है मास पर डिपेंड कर रही है, सिमिलर वे में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है मास पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, वैसे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है मास पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है. यदि आप ज़्यादा मास ले रहे हैं 1 kg की अगेंस्ट 2 kg 3 kg, तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा उसको ऑक्यूपाई करने के लिए. तो वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है मास पे. एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है. वहीं एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी भी मास पे डिपेंड करेगा. एंथैल्पी है, एंथैल्पी भी मास पे डिपेंड करेगा. अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज. ये जो प्रॉपर्टीज है, किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, तो प्रॉपर्टीज को किस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, है ना. एंड द सेकंड वन इज प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन. प्रॉपर्टीज को हम किसी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं, ड्यूरिंग पाथ डिफाइन नहीं कर सकते. आप कोई सिस्टम ले रहे हैं तो किसी पॉइंट पे आप बता सकते हैं कि फिलहाल कितना वॉल्यूम है वहाँ पे, 1 लीटर है, 2 लीटर है, बट ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, सपोज 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद उसका वॉल्यूम जो है 1 kg है. इस तरह से डिफाइन नहीं होता है. स्टार्टिंग में कितना है, वह किसी पॉइंट 1 पे कितना है, पॉइंट 2 पे कितना है, पॉइंट 3 पे कितना है, तो ये जो है पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि किसी पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं. तो प्रॉपर्टीज जो है ऑलवेज आर पॉइंट फंक्शन. ये पाथ फंक्शन नहीं है. हम 2 पॉइंट के बीच में डिफाइन नहीं कर सकते कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के ड्यूरेशन में जो है वॉल्यूम कितना है, इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं. प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री. किसी भी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है. नाउ कमिंग टू द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस. एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ द सिस्टम. मीन्स सपोज यू कंसिडरिंग एनी एट पॉइंट कि पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो प्रेशर है 1 पास्कल है, 2 पास्कल है, वॉल्यूम इतना है ना, एनर्जी इतनी है. तो पर्टिकुलर पॉइंट पे या स्टेट पे यदि हम लोग सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम. द स्टेट ऑफ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी. और किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए वह उस पॉइंट पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करना जरूरी होता है, और प्रॉपर्टीज के थ्रू ही स्टेट डिफाइन होती है कि पर्टिकुलर स्टेट में कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना एनर्जी है. इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज, द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि आप बोल रहे हैं कि इतना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज प्रेशर इज 2 पास्कल, तो यदि 2 से 3 होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि स्टेट चेंज हो जाएगी. यदि प्रॉपर्टीज, कोई सी भी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, सेम स्टेट में नहीं रहेगा वो. द चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड द प्रोसेस. और जैसे ही स्टेट चेंज होती है, मीन्स पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आप जा रहे हैं, जहाँ प्रेशर चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गई है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो ये जो चेंज हो रहा है, तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस. एंड द इनफाइनाइट स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासेस by going from initial to final state is called the process path. The process can be further classified as quasi-static and non-quasi-static. यहाँ पे quasi-static और non-quasi-static क्या है? A process is carried out infinitely slow, then it is called the quasi-static process. यदि किसी प्रोसेस को हम बहुत ही स्लो कर रहे हैं, स्लो करने का रीज़न क्या होता है कि किसी प्रोसेस को हमको रिवर्सिबल रखना है, वहाँ पे हमें लॉसेस कम चाहिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही इन्फाइनाइटली स्लो कैरी आउट करवाते हैं. तो ऐसी प्रोसेसेस को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस. एंड अदरवाइज इफ वी आर नॉट कैरिंग आउट द प्रोसेसेस विद वेरी स्लो, देन दैट will be the non-quasi-static processes. For quasi-static processes, since the properties are uniform, they are not constant. Uniform रहती है वो, hence they are generally represented by the joint line on the property diagram. यदि quasi-static process कहीं पे शो करना हो डायग्राम पे, ग्राफ पे, तो वो आपको एक कंटिन्यूस लाइन के थ्रू दिखेगी. और वहीं नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस को जब देखेंगे हम लोग किसी ग्राफ पे, तो वो डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. Now coming to the reversible and irreversible process. Reversible process क्या है?
इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? A process is said to be reversible if when reversed in direction follows the same path. यदि किसी प्रोसेस को कैरी किया है पॉइंट 1 से 2 की ओर और हम लोग रिवर्स करना चाहते हैं उसको वापस सेम पाथ से, जिस पाथ से 1 से 2 पे गया है वैसे ही 2 से 1 पे आना चाहते हैं और वो पॉसिबल है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं. A process is said to be reversible if when reversed in direction follows the same path as that of forward process without having any changes. इसके ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए इन सिस्टम as well as surrounding, otherwise process will be irreversible. यदि ये प्रोसेस जो रिवर्स कर रहे हैं 2 से 1 की ओर, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में यदि कोई चेंजेस आता है सिस्टम में या सराउंडिंग में, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग फिर इरिवर्सिबल बोलेंगे. रिवर्सिबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम में चेंजेस ना आए. एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. हियर आई हैव शोन सम एग्जाम्पल्स की रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन कौन सी हो सकती है. एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग. यदि किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो इजीली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा सेम पाथ के थ्रू, और इससे ना तो सिस्टम में कोई चेंज होगा ना कि सराउंडिंग में, यदि स्प्रिंग को ही हम लोग सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. स्लो एडियाबैटिक कंप्रेशन. कोई एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वहाँ पे यदि बहुत स्लोली एडियाबैटिक कंप्रेशन करें या एक्सपांसन करें गैस का, तो वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस विद नो रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट. यदि इलेक्ट्रोलाइट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी. द फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ द सॉलिड. यदि कोई सॉलिड मोशन कर रहा है, आइडियली वी कंसीडर कि कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट जनरली वहाँ पे फ्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं हर जगह. कोई सा भी आप सॉलिड हो, लिक्विड हो, हर जगह कुछ न कुछ जो है फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. बट इफ़ वी कंसीडर द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस and the motion is frictionless, that time we can say the process is reversible. So there will be no energy losses in that type of process. Next one is the slow isothermal compression or expansion of the gases. यदि isothermal compression और expansion कर रहे हैं very slowly quasi static process के through, तो ऐसे process भी reversible process होंगे. Examples of irreversible process. रिलेटिव मोशन विद द फ्रिक्शन. यदि किसी सरफेस के बीच में या बॉडीज़ के बीच में मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी लॉसेस भी होंगे. तो सेम पाथ से वापस सेम जगह विदाउट एनर्जी लॉस पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे. सेकेंड वन इज़ द थ्रोटलिंग. थ्रोटलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल. हीट ट्रांसफ़र, कहीं पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ हीट we cannot transfer back to the object or the source, so it will also be the irreversible process. Fourth one is the diffusion process and fifth is electricity flow through a resistance. जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वहाँ पे भी लॉसेस होते ही होते हैं. कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, तो ऐसी प्रोसेस भी इरिवर्सिबल है. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पुट किया मैंने ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बेटर समझ पाए हम लोग. सो फर्स्ट वन हियर इज अ क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच. क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें देयर इज अ नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री. जहाँ पे एनर्जी और मास का ट्रांसफर ना हो बाउंड्रीज के थ्रू. देयर इज अ नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट. जहाँ पे मास ट्रांसफर ना हो बट एनर्जी का ट्रांसफर हो. देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर बट देयर इज अ मास ट्रांसफर. जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर ना हो और सिर्फ मास का ट्रांसफर हो, और बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर एग्जिस्ट. इन चारों में से क्या हो सकता है? तो हम लोगों ने अभी देखा था कि क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ से मास का ट्रांसफर होना तो पॉसिबल नहीं है बट एनर्जी ट्रांसफर होता है. तो सेकंड बी ऑप्शन इफ यू विल सी, देयर इज अ नो मास ट्रांसफर. मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट. सो द राइट आंसर विल बी द B. There is no mass transfer and energy transfer exists. Now coming to the next, which of the following is not an extensive properties? अभी देखा था कि intensive properties क्या होता है, extensive properties क्या होती है. Intensive properties जो mass पे depend नहीं कर रही है
और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है, मतलब इंटेंसिव है। फर्स्ट वन इज एंट्रोपी, सेकंड इज एंथैल्पी, थर्ड इज इंटरनल एनर्जी एंड फोर्थ इज डेंसिटी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, और मास पे डिपेंड नहीं करेगी मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव नहीं होगी। सो फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर हियर is the density. Density is not an extensive property. When there is a no heat exchange between two bodies that are at the same temperature, they are said to be in. यदि कोई सिस्टम्स के बीच में सेम टेम्परेचर है और हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि किस तरह की कंडीशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट है यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड है एनर्जी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, थर्ड वन इज हीट इक्विलिब्रियम एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। तो इट इज़ वेरी सिंपल, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जहाँ पे टेम्परेचर सेम है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी की कुछ कंडीशंस देखी थी कि प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होता है ना। तो इन चीज़ों को याद रख के यदि हम लोग चेक करें कि ये चार में से कौन सा है जो ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग टेम्परेचर जब भी डिफाइन करते हैं तो पॉइंट पे ही डिफाइन करते हैं कि पॉइंट 1 या किसी पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है, किसी बॉडी का क्या टेम्परेचर कर रहा है, प्रोसेस के थ्रू डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये एक पॉइंट फंक्शन है, तो इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। प्रेशर भी किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम का बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पॉइंट पे डिफाइन होता है। अब हीट की बात करें तो हीट किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती है। हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है किसी बॉडी से, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हीट जो है पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है। तो हीट विल बी द आंसर। हीट इज़ अ नॉट प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन कौन सी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, प्रेशर एंड एंट्रोपी। इन चारों में से कौन सा है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। सो इफ यू विल सी, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करें, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी तो आंसर होगा। प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ऑन द मास, ये भी डिस्कस किया था। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी and the pressure will be the right answer, means 2 and 3 will be right answer here. Which of the following is an intensive property? इनमें से कौन कौन सी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। फर्स्ट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो टेम्परेचर एंड द प्रेशर मास पे जो है डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो पहला ऑप्शन है एंथैल्पी, सेकंड वन इज एंट्रोपी, थर्ड वन इज स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सारी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। तो थर्ड वन जो यहाँ पे है स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी द राइट आंसर। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी जो है वो मास पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी भी मास पे डिपेंड करती है। आइसोलेटेड सिस्टम इंडिकेट्स, आइसोलेटेड सिस्टम क्या इंडिकेट करता है, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसे सिस्टम जहाँ पे जो है मास का फ्लो पॉसिबल नहीं है और जहाँ पे एनर्जी का फ्लो भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री। मास क्रॉस करता है, सो ये रॉन्ग हो गया। एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी भी क्रॉस नहीं करती है, तो ये भी रॉन्ग है। बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री, जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों क्रॉस कर रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम है जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों ट्रांसफ़र नहीं होंगे। सो फोर्थ वन जो है बोथ मास एंड एनर्जी
of the substance does not cross the boundary will be the right answer. Coming to the next, a closed thermodynamic system is one in which closed thermodynamic system क्या होता है? closed system की properties हम लोगों ने देखा था कि closed system क्या होता है, जहाँ से मास का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है बट एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है. सो फर्स्ट ऑप्शन देखें यदि हम लोग, तो देयर इज अ नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, जहाँ से ना एनर्जी पास हो रही है और ना मास पास हो रहा है, तो ये गलत हो गया क्योंकि मास एनर्जी तो पास हो सकती है क्लोज सिस्टम में. देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट, जहाँ से मास ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट कर रहा है. सो सेकंड वन इज द राइट, क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या देखा है हम लोगों ने कि एनर्जी का ट्रांसफर तो पॉसिबल है, सिर्फ मास एग्जिट नहीं कर सकता है. अब हीट और वर्क क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है. हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो पहली बात ये कि हीट और जो वर्क है प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हीट जो है पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है. ड्यूरिंग प्रोसेस हम लोग बता सकते हैं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने पे कितना काम कर रहा है कोई बॉडी. तो ये डिपेंड करता है पॉइंट पे. आप किसी सिंगल पॉइंट पे नहीं बता सकते हैं कि कितना वर्क किया है. आपको एक प्रोसेस के ड्यूरेशन में ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वर्क को और हीट को. तो ये हीट एंड वर्क जो है प्रॉपर्टी नहीं है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज फिर से प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव होने का सवाल नहीं है यहाँ पे. पॉइंट फंक्शन भी नहीं है. फोर्थ वन इज द पाथ फंक्शन. तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए राइट ऑप्शन विल बी द पाथ फंक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम. इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब जो मास पे डिपेंड कर रही हो. प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता है. वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द मास, सो द राइट आंसर विल बी वॉल्यूम. टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है. एंड डेंसिटी अगेन हियर डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. एंड ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सिस्टम हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों एग्जिट कर सकती है या फ्लो कर सकती है. सो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री. मास तो ट्रांसफर होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड इज नेदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री. ना मास ट्रांसफर हो सकता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती. देन द सेकंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम. थर्ड वन इज द राइट आंसर, यहाँ पे एनर्जी और मास दोनों ही क्रॉस कर सकती है बाउंड्रीज सिस्टम की, इसलिए ये ओपन सिस्टम है. द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इसेंशियली डिपेंड ऑन. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? तो हम लोगों ने इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों देखा था कि इंटेंसिव जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रही है और एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड कर रही है. फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, मास ऑफ द सिस्टम. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड करती है, तो सिस्टम में जितना मास होगा उस पर डिपेंड करेगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो राइट आंसर विल बी द मास ऑफ द सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास. एंथैल्पी मास पे डिपेंड करेगी. टेम्परेचर एंड प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी मास, सो द राइट आंसर विल बी एंथैल्पी मास पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स आर. ये जो प्रॉपर्टीज गिवन है प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं? तो प्रॉपर्टीज होने के लिए पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो पॉइंट फंक्शन होना चाहिए और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए. चारों ऑप्शन को देखते ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, पॉइंट फंक्शन. पाथ फंक्शन नहीं हो सकता और साइक्लिक फंक्शन, रियल फंक्शन भी डिफाइन नहीं करता प्रॉपर्टीज को. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज इनफ फॉर टुडे. वी विल further discuss all this thing in our next lecture. Thank you very much.